Hello class, good morning to all, and today we will discuss a new topic in your NCERT, and the topic is that percentage composition. Clear? So make the heading with me, percentage composition. Percentage composition. Now dear students, that what is this percentage composition? Yeah. First of all, understand the meaning of composition. Percentage, we all know that means the 1 upon 100. Okay? The parts of any element, any atom in the whole is called the percentage. Okay? So see, what is the meaning of this composition? Composition, that means you can say the mixture of different atoms and molecules. Clear? It's called the composition. Okay? And you are going to calculate the percentage composition. Okay? Percentage composition of any, you can say, the particular atoms and the molecules. Okay? And the most of cases you will calculate the percentage composition of any atoms. Clear? So see, suppose first of all see what is the formula of this percentage composition. Okay? So percentage composition is always equal to the mass of the substance, yeah, mass of the atom in compound upon mass of the compound. मास ऑफ दी कंपाउंड्स. ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि द परसेंटेज क्या होगा किसी का. ठीक है, तो यू कैन सी दैट द परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू द मास ऑफ द एटम्स इन कंपाउंड ओवर द मास ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, यानी कि जिसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है उसका मास आप टॉप में लिखेंगे. ठीक है, एंड देन टोटल मास जो होगा आपका उसे आप बॉटम में लिख देंगे. ठीक है, बात समझिएगा. विद एन एग्जांपल, सपोज यू हैव द वाटर एंड द क्वेश्चन कम्स कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen in water. This is your question. ठीक है, got the question? Question is that calculate percentage composition of hydrogen and oxygen in water. ठीक है, यानी कि आपको इस H और O का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है वाटर के फॉर्मूले में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट यू हैव द वाटर. ठीक है, पहले आप वाटर का निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, यानी कि टोटल मास निकाल लीजिए. ठीक है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है द मास ऑफ द कंपाउंड. क्लियर, तो मास निकाला आपने 2 into 1. द मेथड इज रिमेन सेम. 2 into 1 प्लस O having the 1 atom into 16, so it's become equal to 18U. Clear, this is the molecular mass of water. So first thing is that calculate the percentage composition of hydrogen. ठीक है, so write here the percentage composition of hydrogen is equal to, the formula is mass of the atom in compound. ठीक है, यानी कि इस H का आपने मास लिखना है. H का मास कितना होता है 1, and remember that in the water molecules you have the 2 atom of hydrogen. There is a 2 S2, so there is 2 over mass of the compound, that the total mass of the compound is equal to 18. ठीक है, एंड आपको निकालना क्या है परसेंटेज कंपोजिशन, दैट मीन इंटू 100. क्लियर, इंटू 100. तो ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन. क्लियर, नाउ हियर द आंसर इज दैट 2 over 18 इंटू 100, तो 2 9 एंड 900 जाएगा 11.18%. ठीक है, तो आंसर इज दैट 11.18%. ठीक है, इतना आ जाएगा आपका द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. बात समझिए, दिस इज अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, दैट मीन द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर एटम्स इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन. सेकेंड थिंग इज दैट कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ऑल्सो. तो यू कैन राइट द सेम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर, of oxygen in water is that the mass of oxygen is the 16, and see here there is only one single O.
ठीक है, only one atom of oxygen, so you will write here only the cysteine over here again you have the 18 into you have 100, so you see that whenever we divide it by 2, so it's a 9 and a 50, so you multiply and it's approximately comes equal to 88 point something, 88.78 something. ठीक है, it's approximate answer, I'm writing here approx, so you will calculate in a perfect manner to calculate your answer. Clear? So answer is that 88.78%. ठीक है, it is clear. So this is the method to calculate percentage composition of any atom in a compound. Clear? So here question समझ गए आप लोग, the calculate the percentage composition of oxygen and hydrogen in water. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड टाइम यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन. दिस पॉइंट इज क्लियर. सो दिस इज योर आंसर. नाउ कम्स विल सॉल्व सम यू कैन से द फर्दर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स. ठीक है, तो मेथड विल बी सेम. ठीक है, बात करेंगे, आप क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन डिपेंड ऑन यू. क्लियर. सो हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हेयर you have CH4. वेरी इजी एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH4. ठीक है, वो कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, आपने करना है C एंड H का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है CH4 के अंदर. ठीक है, यानी कि कार्बन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है CH4 मीथेन में, और हाइड्रोजन का कितना कंपोजिशन है, कितना पार्ट हाइड्रोजन का प्रेजेंट है इन दी CH4 मीथेन के अंदर. ठीक है, सो फॉर्मूला इज द सेम. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, द सिंपल फॉर्मूला, मास ऑफ कार्बन ओवर टोटल मास, ओवर टोटल मास इंटू 100. ठीक है, टोटल मास ओवर इंटू 100. ठीक है, अब यहां पर सेम कर दिया. द मास ऑफ कार्बन वी ऑल नो दैट इट्स बिकम इक्वल टू 12 ओवर द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. टोटल मास कैसे निकालेंगे आप लोग, 12 यहां निकाल देते हैं हम लोग. CH4 का, CH4 अगर निकालते हैं तो सेम थिंग इन द मैनर CH4. So class, do the same things. That mean the mass of carbon is above and the total mass of the compound is in down. Clear? So after saying that, you see that that the total mass of CH4 we are calculating here. That means the carbon atom is 1 into the 12 plus hydrogen atom is 4 into 1. That means it's become equal to 16U. ठीक है, so right here the 16 into 100. ठीक है, so after solving this comes equal to, you can say 4 3 and 4 4. ठीक है, and 4 you can say here is the 25. Clear? And there is the 25 into 3 is the 75% accurate. ठीक है, so this will comes equal to 75%. ठीक है, now calculate the percentage composition of hydrogen in CH4. ठीक है, so right here the mass of hydrogen is 1 into the atom of hydrogen is 4. In CH4 you are saying that there is a 4 atom of hydrogen is present. 4 over is same 16 into 100. ठीक है, so after calculating this is a 4 into 16 the 4 and the 4 is 100, that means the 25. So it's come equal to 25%. Clear? And you can do the simple thing here for checking your answer. You can do a things that you can cross check your answer. You see that the percentage composition of carbon and the percentage composition of hydrogen sum comes equal to 100. ठीक है, the sum comes equal to 100. Clear? That means you are saying that the percentage composition of carbon is 75% plus the percentage composition of hydrogen is 25%. This comes equal to 100. ठीक है, and this is, you can say, a compound is always equal to the 100%. ठीक है, आपने चेक भी कर लिया. That means the answer is accurate 75% and the 25%. ठीक है, 75% is the carbon and 25% is of hydrogen is comes equal to 100. So your answer is accurate. ठीक है, so this is the method.
Again, I have some examples. Do this example in the same manner. The example is that you have CO2. Calculate the percentage composition of carbon and oxygen. ठीक है, इन दो का आपको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन CO2. ठीक है, सो द सेम थिंग्स, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन हैव द 12 ओवर the total mass of CO2. Total mass of CO2, that means the carbon 12 plus you have the 1 2O, 2 into 16 is comes equal to 12 plus 32, that means 44U. That means 44U is your the total mass of CO2. Clear? So the percentage composition of carbon is equal to the 12 over the total mass of CO2, that means the 44 into 100. So you will solve it for getting the accurate answer. Again you have the O, percentage composition of O. ठीक है, so you can write here O mass is 16 and you see that there is 2 atom of O, that means into 2 over the total mass, that means 44 into 100 into 100. So you will get the answer. ठीक है, after solving you will get the answer. So जो भी आपको आंसर मिलेगा आप उसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं by adding these two. Whenever you add these two, so you will get the 100%. ठीक है, करके देख लेते हैं and you will solve it. ठीक है, so I am solving here 44 into 100 plus 16 into 2, 32 over 44 into 100. ठीक है, so you will see that the 100 is a common here, common. So you will see the 12 over 44 plus 33 over 44. Again the 12 is the common. So there is a 100 over 12 is the common, and there is 12 plus 32. Sorry, this is 32. ठीक है, 32. ठीक है, so 12 plus 32. Again you will see that it comes equal to 44. So it's 100 over 100, sorry 100 over 44 into 44. So 44 cancel by 44 and your answer comes equal to 100. Comes equal to 100. ठीक है. So you will see that the sum of these two percentage composition is becoming equal to 100. So that means your answer will be accurate. Clear? So you can check your answer by this method also. So class, this is your the first thing, that means percentage composition. Now come to the second things. Here we calculate here the percentage composition, and it's very useful in the calculation in empirical formula. ठीक है, so now we'll talk about the empirical formula. You have a question comes in under the 5 marker in under 3 marker question, the calculate the empirical formula as well as its molecular formula of given composition of any organic compound. Clear? So बात करने वाले हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला की. इंपेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, so see what is the meaning of this empirical formula. Suppose you have a compound and you have a basic idea of how many atoms are combining together in this molecules या in this compound, so it's called its empirical formula. ठीक है, suppose I have an organic compound having the composition of carbon, hydrogen, nitrogen या any other atoms is there. So उसमें इस composition में किस atom का कितना पार्ट आप ले रहे हैं उसे आप बोल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली समझेंगे इस टॉपिक को बाय सम एग्जांपल्स. ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं. सो सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट इन एन organic compound percentage composition of various element is as. ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इज एज. ठीक है, कुछ एलिमेंट आपको मिलेंगे, उनका आपको मिलेगा यू कैन से द परसेंटेज कंपोजिशन.
ठीक है, उस परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से आपको पहले इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, ठीक है, वो आपको देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो आई एम राइटिंग सम परसेंटेज कंपोजिशन हियर। So you have the percentage composition of carbon is equal to 40.68 percentage. Then you have hydrogen is equal to 5.085 percentage. ठीक है, and then is oxygen is equal to 55.228. And for your convenience, there is a further things is given that the molecular mass of this compound, ठीक है, आपको given होगा, या sometime you have to given the vapor density of this compound, ठीक है, vapor density and the molecular mass के अंदर relationship होता है, that means the vapor density is equal to 2 into, yeah, you can say molecular mass equal to 2 into vapor density. So I am writing here the vapor density of this compound, vapor density is equal to 59. ठीक है, I think there's a 59, so I'm writing the vapor density is equal to 59. ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है इस क्वेश्चन में। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इज एज कार्बन इज 40.68%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5.085%, O is 54.228%, and the vapor density is equal to 59. So calculate its vapor. So calculate its empirical formula as well as molecular formula. ठीक है, so क्या करना है आपको, चार्ट बनाना है बढ़िया सा। ठीक है, हमें चार्ट बनाते हैं, पहले चार्ट बनाते हैं। चार्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्टली, यहाँ लिख लीजिएगा एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, यहाँ लिखिएगा सिंबल, सिंबल, यहां लिखा हमने परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन, यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, यहां लिखेंगे सिंपल रेशियो, या यहां लिख दीजिए रेशियो, रेशियो, यहां लिखेंगे आप सिंपल होल रेशियो, ठीक है, वो बाद में कर देना। चलिए आप देख रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में केवल 3 एलिमेंट है आपके पास। आपने कहा एलिमेंट आपके पास है कार्बन, आपने कहा कार्बन, सेकंड आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, थर्ड आपके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। देन आपने कहा सिंबल क्या होता है इसके लिए, कार्बन C सिंबल, हाइड्रोजन H सिंबल एंड ऑक्सीजन O सिंबल, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन दिया आप लोगों को, कुछ करने की रिक्वायरमेंट तो लिख लीजिए 40.68%, देन लिखा आपने 5.085%, देन लिखा आपने 54.228%। बात समझ गए? चलिए अब यहां हम देखा नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व। नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व कैसे निकलेगा आपका, आप यहां देख लें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। आप निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, इसको आप निकालेंगे बच्चे, बहुत इजी है, परसेंटेज कंपोजिशन ओवर मोलर मास, ओवर मोलर मास, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, ठीक है। ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, देखिए आपको गिवन है, आपने क्या करना है अपॉन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कार्बन के मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना है। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन दिस कार्बन तो कितना हो जाएगा 40.68 ओवर 12 इक्वल टू कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा। सेकेंड थिंग यहां कर देंगे आप 5.085 ओवर H का मास कितना होता है बच्चे, 1 होता है, तो आपने कर दिया 1, ठीक है, क्योंकि H आपके पास है, H2 लिखा नहीं उन लोगों ने। सेकेंड थिंग इज दैट 54.228, ठीक है, कितना लिखा 54.228 ओवर O आपके पास है, O दैट मीन द 60, ठीक है।
बट यहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन हो, ठीक है। फॉर द टर्मिनेस आई सॉल्व दिस, यू कैन सी द सॉल्व, या आई कैलकुलेट दिस फॉर्मूला या दिस परसेंटेज हियर. So my answer is coming equal to the 40.68 over 12 is equal to 3.390. ठीक है, डेसिमल के 3 पॉइंट आप ले सकते हैं आंसर को, 3 पॉइंट लेना ही पड़ेगा आप लोगों को. डेसिमल के बाद से 3 पॉइंट्स आप लेंगे, ठीक है, फॉर योर एक्यूरेट आंसर. सेकेंड थिंग्स यू हैव सेम आंसर द 5.085, ठीक है. देन 54.228 ओवर 16 आएगा आपके पास 3.389, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बच्चा आपके पास एक नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व, ठीक है. देन आप देख रहे हैं कि आपके पास एक नया मिलके आ रहा है जिसे आप बोल रहे हैं रेशियो, जिसे आप बोल रहे हैं रेशियो, ठीक है. अब इस रेशियो में आपने क्या करना है, इन तीनों क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे और इन तीनों क्वांटिटी के अंदर सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है. इस क्वांटिटी में, इन तीनों में आप ढूंढेंगे पहले द लोवेस्ट क्वांटिटी. क्या निकाल रहे हैं आप, लोवेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है. आपने लोवेस्ट देखा, लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू मी 3.390, 5.085, ये तो बड़ा है ऑलरेडी. हियर इज 3.389, ये कुछ छोटी वैल्यू देख रहे हैं आप लोग, ठीक है. तो आपने इसको चूज किया, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू, इसको सर्कल कर लीजिए ऐसे, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू निकाल लिया आपने. अब इस लोवेस्ट वैल्यू से आपने तीनों क्वांटिटीज को डिवाइड करना है इन द सेक्शन ऑफ रेशियो, इन द सेक्शन ऑफ रेशियो, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 3.390 ओवर 3.389, कितना हो जाएगा, 3.389 हो जाएगा, ठीक है. कुछ आएगा सामने 5.085 ओवर 3.389, ठीक है. अगेन 3.389 ओवर 3.389, ठीक है. जैसे इसको डिवाइड करेंगे इट्स कम्स अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा. तो आपने लिखा है इसको 1, ठीक है. बात समझिए. सेकेंड थिंग, ये भी 1 आ जाना है, ये भी क्या आ जाना, 1 आ जाना आपके पास, ठीक है. तो आपने यहां पर क्या करना है, 3.389 से डिवाइड करना है 5.085, तो इट्स कम्स अप्रोक्सीमेटली 1.5, 1.5, ठीक है. अब यहां पर आके बातें आपके रुक जानी है. ये आपका हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा रेशियो. रेशियो के बाद से आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिंपल होल रेशियो मिलता है, ठीक है, इफ देयर इज सिंपल होल रेशियो, तो हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे. अगर नहीं मिल रहा है तो यहां पर एक और काम करेंगे, हम इसको बनाएंगे सिंपल होल रेशियो, ठीक है. हम इसको क्या बनाएंगे, सिंपल होल रेशियो बना सकते हैं, ठीक है. इसको क्या बनाएंगे, सिंपल होल रेशियो बनाएंगे. तो आप एक नया कॉलम बनाइएगा, न्यू कॉलम इज दैट सिंपल होल रेशियो, ठीक है. कैसे बन सकता है सिंपल होल रेशियो, देखिए दिस इज 1.5, दिक्कत यहीं पर आ रही है. तो जैसे आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1.5 इंटू 2 मिल जाएगा आपको 3. कितने मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा. तो आपको बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी जो रेशियो, उनको भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है. तो आपका सिंपल होल रेशियो बच्चे बन गया. ये आपके पास था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो कार्बन इज द 2, हाइड्रोजन इज द 3 एंड O इज 2, O इज 2, ठीक है. यानी कि जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन था ये वाला, इस परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और O 2 है. तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन बट वेपर डेंसिटी ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है. आप यहां पर इजिली लिख सकते हैं यहां पर कि कार्बन इज द 2, H इज 3 एंड O इज 2. So the compound is C2H3O2. This is your empirical formula. This is your empirical formula. ठीक है, this is your empirical formula. बात समझ गए. अब बड़ी बात यह होता है कि empirical formula is not give the accurate idea of atom present in the compound. ठीक है, दिस इज एन रफ आइडिया, दिस इज एन रफ आइडिया. आपके पास रफ आइडिया हो गया
कि आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसके अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दिस इज एन रफ आइडिया, ठीक है। देन हम लोग निकालते हैं फॉर द एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहां लिखते हैं हेडिंग्स। नाउ द सेकंड हेडिंग, इसका काम बिल्कुल ओवर हो गया, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस टेबल, ठीक है। यू ऑलवेज सॉल्व योर क्वेश्चन बाय मेकिंग दिस चार्ट, दिस टेबल, इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। सो नाउ सी हियर, अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चे n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बोला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला तो ये आपके पास है। अभी n क्या है, देखो n आप निकालेंगे आप लोग टोटल मास, ठीक है। टोटल मास कैसा होगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपके पास, जो क्या होता है ऑलमोस्ट गिवन होता है आपके पास, ये गिवन क्वांटिटी होती है, ठीक है। ओवर आप कर लेंगे मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि टोटल मास तो गिवन था नहीं, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया था, वेपर डेंसिटी गिवन है, ठीक है। गिवन क्या था आपके पास, वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चे जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका रिलेशन होता है विद द वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो हियर आपको निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास इक्वल 2 इंटू 59, इट्स कम इक्वल टू 9 इंटू 2 द 18, 1 5 10 एंड 11, इतना निकल गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास 118, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, कितना आ जाएगा, C इंटू 2 कितना हो जाएगा, आप यहां लिख लीजिए हेडिंग मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, कितना हो गया 24 प्लस 3 प्लस 16, ठीक है। 16 and 24 plus 16, 24 plus 6 30 and you can say that 30 and 40 plus 3 43, ठीक है। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर से निकाल लीजिए इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है क्लास। चलिए फिर से निकाल लेते हैं हम लोग, वही मेथड आपके पास है, कार्बन इज 12, कुछ मिस्टेक आई थिंक हो गया था बाय राइटिंग 16 वगैरह जो लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं 12 इंटू 2 प्लस H 1 इंटू 3 प्लस O 2 इंटू 16, कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 32, ठीक है। तो 30 प्लस 20 तो 40 और 6 46 and 46 plus 3 sorry 30 plus 20 the 50 plus 4 54 plus 2 56 plus 3 59, ठीक है। कितना निकल जाएगा 59, यू आपके पास निकल गया, ठीक है। तो आपने निकालना है द वैल्यू ऑफ n निकल जाएगा आपके पास टोटल मास 118 एंड द मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू 59, तो आप यहां पर n निकाल लीजिए, n इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 118 ओवर 59, तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, ठीक है। जब आपने n निकाल दिया तो n के बाद से आप क्या निकाल लीजिए, डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, बात समझिए। तो आप यहां निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि m ऑफ इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला EF, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू EF, तो आपने देखा m ऑफ इक्वल टू 2 इंटू क्या था आपके पास C2
H3O2, ठीक है. So it's come equal to the C4H6O4. C4H6O4. So that means molecular formula of this compound is C4H6O4. ठीक है. This is your molecular formula. ठीक है. This is empirical formula and this is molecular formula. Clear? So got the question? Questions you will solve in this manner. Always you have to given that the percentage composition of various element in an organic compound. ठीक है. ऐसा मिलेगा आप लोगों को. And first of all you will make a chart with the help of the given percentage composition. Understand that? The second things you have calculate the molecular mass. ठीक है. या molecular mass निकालना पड़ेगा आप लोगों को. It's most of time it's given, but if it's not given, so there is some relation between the molecular mass with the other, you can say the phenomena like the vapor density and all. Yeah. So you will calculate the molecular mass and then you will see that, yeah, you will calculate the n equal to molecular mass over the mass of empirical formula. जैसे यहां पर निकाला हम लोगों ने, यहां पर 2 निकल गया. सो आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना विद दिस empirical formula. दिस द रिलेशनशिप इन बिटवीन द n एंड या empirical formula एंड molecular formula. Molecular formula is equal to 2 into empirical formula. ठीक है. तो ऐसे निकाल लेंगे आप लोग किसी क्वेश्चन में empirical formula as well as molecular formula. Clear? So you can further solve some questions related to this molecular formula and the empirical formula. Rest we will talk in the next video. Thank you so much.